Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 17 of the course Software Quality Engineering. We are in the second part of the course and we are mainly talking about software testing. It is very important for you to note that why software testing is necessary for software quality engineering. You must understand that quality cannot be achieved unless and until there is no software testing. So if you want a quality software, if you want a quality engineering, then you must perform software testing, because software testing will eliminate the bugs, errors, problems in the software, and if there are no errors, bugs, problems in the software, the quality of the software will automatically go high. Remember one thing, and that is, if the software has got many problems, if the software has got many issues, this will result in the faults in the system. And if there are many faults in the system, this will lead towards the failures. And if there are many failures in the system, people, customer, client, and user, they will stop using the software. So if you want a quality software, just make sure that it hasn't got any type of error or bug. And this is the reason we have been discussing different possible software testing methods, techniques, phases, sub-phases, other techniques. So in this particular part, which is part 2b, we are discussing some other models and techniques that are used for software testing. Let us have a look on the summary of previous lecture. So in previous lecture, we talked about testing techniques. We had an overview of major software testing techniques, like we discussed what is ad hoc testing, what is usage-based statistical testing. We overviewed control flow testing, data flow testing, and these are different testing techniques. So in order to do these testing techniques, we have then got unit testing or black box testing, or we have got system testing or integration testing or white box testing. So these are other sub phases which are used in order to carry out the testing. हमने ये बात भी की थी कि बाज़ औकात सॉफ्टवेयर ऐसी टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर कुछ ऐसी स्पेशल किस्म का होता है कि आपके जो नॉर्मल या ट्रेडिशनल टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं वो उस पर अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए फिर आप स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग करते हैं और फिर आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली आप चेक करते हैं. स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सिमिलर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करते, कोई उसके लिए टेस्टिंग का स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. हमने वी मॉडल के सब फेजेस को भी डिस्कस किया था और हमने देखा था कि स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग में वी मॉडल के साथ जो है वो कुछ इजाफी तौर पर मज़ीद स्टेजेस, स्टेप्स या फेजेस ऐड किए जाते हैं और वो टेस्टिंग में हमें फैसिलिटेट करते हैं. स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स को हमने देखा और इसके बाद हमने वेब टेस्टिंग को देखा और वेब टेस्टिंग की केस स्टडी देखी. हमने ये देखा कि अगर सॉफ्टवेयर की टाइप वेब है, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर की टाइप वेब बेस्ड है तो फिर आप उसमें HTML सिंटैक्स देखेंगे, आप उसमें लिंक्स की करेक्टनेस देखेंगे, आप जो है वो लिंक्स का करेक्ट फ्लो देखेंगे. सो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं. हम पिछले 2 लेक्चर्स को डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं. सो हमारे पास सॉफ्टवेयर की वैरायटी है और हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स की भी वैरायटी है. सो डिपेंड करता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, डिपेंड करता है उस सॉफ्टवेयर का साइज और कम्प्लेक्सिटी क्या है, डिपेंड करता है कि आपके पास टेस्टिंग के रिसोर्सेज कितने हैं. उसके बाद आप अकॉर्डिंगली कोई एक या एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग टेक्निक
उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर यूज़ करते हैं। सो कोई यूनिवर्सल, कोई जेनेरिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक नहीं है जो कि हर किस्म के सॉफ्टवेयर पर कॉमनली यूज्ड हो। सो ये बड़ा आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव गॉट, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, व्हाट डू वी वांट टू टेस्ट, what is the complexity of the software, and then according to that you then pick up or you then select a relevant software testing technique. So this was the brief introduction, this was the brief summary of what we have learned in our previous lecture. Let us proceed towards the outlines of today's lecture. Inshallah, in today's lecture we are going to talk about use cases and the test case generation for used cases. I assume that you are familiar with the use cases, which are one type of diagram in UML diagrams which is used for software engineering. So use cases, they also needs to be checked. So how will you create or generate a test for a use case? We are going to have a look on that. Then we have equivalence partitioning, and then we have boundary value analysis. So what is equivalence partitioning and what is boundary value analysis? These are going to be discussed with some examples in today's lecture. The objectives of today's lectures are to understand and distinguish between a use case test generation, equivalence partitioning एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इन तीनों चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। टेस्टिंग की हम मुख्तलिफ टाइप्स देखते आ रहे हैं, ठीक है। सो आज हम इसको देखेंगे कि पार्टीशनिंग, इक्वलेंस पार्टीशनिंग करके आप कैसे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या आप किसी सॉफ्टवेयर में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे करते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की ज़रूरत क्या है और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किया कैसे जाता है। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के हर फेज़ में कहीं ना कहीं टेस्टिंग अप्लाई होती है। हम ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सॉफ्टवेयर को कंप्लीट डेवलप कर लें और उसके बाद जो है वो आप उसकी टेस्टिंग करें, बल्कि टेस्टिंग एक पैरेलल एक्टिविटी है। सो जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहा है, और ये हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर आप UML डायग्राम्स बनाते हैं, जिसमें से एक टाइप की डायग्राम है यूज केस डायग्राम, अदर डायग्राम्स हैं एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और इसके अलावा बाकी डायग्राम्स। सो यूज केस डायग्राम को टेस्ट करना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस यूज केस की बेस पर आगे ढेर सारी डेवलपमेंट्स होनी है। सो अगर यहाँ पे कोई एरर है जिसको आपने टेस्ट नहीं किया और नहीं पकड़ा, ठीक है, तो आगे आप जितनी डेवलपमेंट करेंगे ये एरर उस सब में प्रोपोगेट होगा, ठीक है। और जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये जानते हैं कि फिर आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं कि फिर आप उस एरर को रिमूव नहीं कर सकते, आप रोल बैक नहीं कर सकते। ऐसा फिर नहीं हो सकता कि 3-4 महीने लगाकर जो आपने डिज़ाइन, कोड और कंप्लीट डेवलपमेंट की, अब वहाँ पे टेस्टिंग की, अब वहाँ पे कोई एरर आ गया है, सो अब आप फिर जो है वो 3-4 महीने पहले चले जाएं और दोबारा से ऐसा नहीं वो सारा काम करें। सो ऑब्वियसली इसके लिए फिर तरीका ये है कि आप हर सॉफ्टवेयर फेज़ में टेस्टिंग करें। सो डिज़ाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट उसके आर्टिफैक्ट्स हैं। सो हर आर्टिफैक्ट को टेस्ट किया जाता है। उन आर्टिफैक्ट्स में से एक आर्टिफैक्ट आपका यूज केस भी है। सो यूज केस को कैसे टेस्ट किया जाएगा, इसको समझना आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। प्लस हम किसी यूज केस को और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को हम रियल लाइफ में अप्लाई करके उसकी एग्जांपल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग यूज केसेस इनटू टेस्ट केसेस। हमें पता है कि हमारे पास यूज केस डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स को यूज करते हुए हम अपना एक यूज केस से हम एक टेस्ट केस बनाते हैं। ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम किसी यूज केस को टेस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम। सबसे पहले आप यूज केस डायग्राम तो बनाएं, ठीक है। यूज केस डायग्राम में मेनली क्या चीजें होंगी, आपके एक्टर होंगे या आपका एक्टर होगा और वो कोई एक्टिविटी, वो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो वेरी सिंपलिस्टिक है।
आपका यूज केस डायग्राम, देयर विल बी एन एक्टर, देयर विल बी सम एक्टिविटीज. सो फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर की में कई एक्टर्स हैं. एक्टर्स हर वो पर्सन है जो कि सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई कस्टमर है. ठीक है, सो एक्टर हर वो पर्सन है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज करेगा. और हमें ये मालूम है कि मुख्तलिफ किस्म के एक्टर्स किसी एक सॉफ्टवेयर पर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नादरा के सॉफ्टवेयर की बात करें, सो इसके ढेर सारे एक्टर्स हैं. ठीक है, इसमें आपके सिस्टम एनालिस्ट हैं, इसमें आपके जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, इसमें आपके जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं. ठीक है, इसमें आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं. सो ये मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स हैं, एक्टर्स हैं जो कि उस नादरा के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. बाज़-औक़ात उस सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक एक्टर होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने स्मार्टफोन के लिए कोई गेमिंग एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड की है. अब गेमिंग एप्लीकेशन को कौन यूज करेगा? सिर्फ एक एक्टर, सिर्फ वो एंड यूजर यूज कर रहा है. उसको किसी मैनेजर ने यूज नहीं करना, या उसको किसी जो है वो और पर्सन ने यूज नहीं करना. हर वो बंदा जो गेम खेलेगा, ठीक है, वो एक्टर कहलाता है, वो एक्टर की कैटेगरी में है. सो इस केस में उसका एक एक्टर है. अगर कोई आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, HRM सिस्टम की बात करते हैं, तो उसके जो कि एम्प्लॉयज़ की डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसके एक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय उसमें एक्टर है, एक फॉर एग्जांपल कंपनी का मैनेजर एक्टर है, एक कंपनी का CEO उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो एक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है. ठीक है, जो कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें हैं, यूजर्स नेम्स और पासवर्ड्स, इनको इशू करना, इनको रीसेट करना, सिक्योरिटी चेक्स को इंश्योर करना. सो एडमिनिस्ट्रेटर एक और एक्टर है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज, उसके एक या एक से ज्यादा एक्टर्स हो सकते हैं. तो जब हम यूज केस को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, और उसमें से सबसे पहले स्टेप में हम एक यूज केस डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम की सूरत में हम बनाते हैं. फिर इसके अलावा यह भी यूज केस का ही स्टेप 2 भी यूज केस डायग्राम को बनाने के स्टेप्स में से शामिल है कि आप डिटेल यूज केस टेक्स्ट लिखते हैं. तो एक तो आपने डायग्राम में लिख दिया, डायग्राम की सूरत में बना दिया कि हाँ जी कौन सा यूजर जो है, कौन सा एक्टर वो सॉफ्टवेयर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है. डायग्राम के थ्रू भी बना लिया. स्टेप 2 में उसको आप टेक्स्ट की सूरत में भी लिख लेते हैं. तीसरे स्टेप में आप वो केस सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि ये एक्टर सॉफ्टवेयर के साथ कितने तरीकों से एक्टिंग कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्टर सॉफ्टवेयर में लॉग इन करता है तो लॉग इन करना इसकी एक एक्टिविटी है. ये एक्टर अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई फाइल्स अपलोड करता है तो अपलोड करना एक दूसरी एक्टिविटी है या दूसरा इंटरेक्शन है. यही एक्टर जो है वो सॉफ्टवेयर में से कुछ डाउनलोड करता है, सो डाउनलोड करना एक तीसरी एक्टिविटी है, तीसरा इंटरेक्शन है. सो वो सारे केस सिनेरियोज लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर एक्टर इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम कर सकता है. ठीक है, अब जिस अगर आपके LMS सिस्टम की बात की जाए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए, सो आप उसका एक एक्टर है. स्टूडेंट इज वन एक्टर. उसके अदर एक्टर्स जो है वो आपका टीचर हो सकता है. उसका एक और एक्टर जो है वो आपका लेट्स से काउंसलर हो सकता है. उसका एक और एक्टर आपका HOD हो सकता है. एक और एक्टर आपका जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजर हो सकता है. तो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं. नाउ यू बीइंग अ स्टूडेंट एक्टर, आप उस LMS में कई चीजें कर सकते हैं. यू इंटरैक्ट विद दैट LMS सिस्टम इन मैनी वेज. हर वो तरीका, हर वो काम, हर वो एक्टिविटी जो आप अपने सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म करते हैं वो एक यूज केस है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका उस LMS पर लॉगिन करना ये एक यूज केस सिनेरियो है. आपका अपने मार्क्स को देखना ये दूसरा यूज केस सिनेरियो है. आपका किसी असाइनमेंट को डाउनलोड करना ये तीसरा यूज केस सिनेरियो है. आपका असाइनमेंट को फिलअप करके अपलोड करना ये चौथा यूज केस सिनेरियो है. आपका क्विज अटेम्प्ट करना ये 5वां यूज केस सिनेरियो है. आपका क्विज के मार्क्स को देखना ये 6ठा यूज केस सिनेरियो है. सो हर वो क्लिक, हर वो बटन, हर वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं वो एक यूज केस सिनेरियो है. सो हम अपने स्टेप 3 में यूज केस सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद स्टेप 4 में जो है वो हम
टेस्ट केसेस को जनरेट करेंगे और लास्टली हम 5th स्टेप में टेस्ट डेटा जो है उसको जनरेट करेंगे। सो 4th स्टेप में टेस्ट केस जनरेट किए और टेस्ट केस के अगेंस्ट जो टेस्ट डेटा जनरेट हुआ है वो हमारे स्टेप नंबर 5 में होगा। आइए इन स्टेप्स को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट एक एक्टर है, एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स से कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई यही हम LMS की एग्जांपल लेते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आप यूज करते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर है। अब ये स्टूडेंट एक एक्टर है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ एक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात की, टीचर एक एक्टर है, काउंसलर एक एक्टर है, इसी तरह मैनेजर एक एक्टर है, HOD एक एक्टर है। इस पर्टिकुलर केस में हम सिर्फ एक एक्टर की बात करें और वो है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से ये स्क्वायर आपका उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, LMS को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये एक्टर इस सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्या क्या काम इसमें कर सकता है, तो हमने 3 काम एग्जाम्पल के तौर पर लिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट से वो अपने आप को किसी क्लास में एनरोल करता है, लेट से वो कोई अपनी प्रोफाइल चेंज करता है, और लेट से वो अपना कोर्स ड्रॉप करता है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मार्क्स व्यू करना, ठीक है, नए कोर्सेज को की असाइनमेंट्स या कोर्सेज को देखना वगैरह वगैरह, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है, अनाउंसमेंट्स को देखना, ये सारे काम वो कर सकता है। लेकिन टाइम बीइंग हमने इन 3 सिनेरियोज को हमने इस केस में देखा है। सो ये ओवरऑल एक यूज केस डायग्राम है जिसमें 3 सिनेरियोज हैं। पहले में वो अपने आप को एनरोल कर रहा है, वो एक्टर, दूसरे एक्टर में वो अपनी प्रोफाइल को चेंज कर रहा है, तीसरे सिनेरियो में वो अपने किसी कोर्स को ड्रॉप कर रहा है। सो स्टेप 1 हमारा ये था कि ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम। स्टेप 2 है राइट द डिटेल यूज केस टेक्स्ट। अब ये चीजें हमने डायग्राम की सूरत में तो बना ली, हमें इनको एक्सप्लेन भी करना है, हमें इनको टेक्स्ट में भी लिखना है। सो स्टेप 2 में हम इसको टेक्स्ट में लिखते हैं। सो ये वो फॉर्मेट है, आप इसको टेबल की सूरत में भी लिख सकते हैं, आप इसको इसके अलावा जो है वो सिंपली सेंटेंसेस की सूरत में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि आप एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन दें और जो सारी डिटेल्स हैं, जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो बेसिक फ्लोज हैं, वो आप लिखें। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले इस यूज केस की आईडी क्या है। लेट्स से हमने इसकी आईडी दी एनरोल 001। यूज केस का नाम क्या है? यूज केस का नाम है एनरोल अ स्टूडेंट। ये यूज केस किसने बनाया है? ठीक है, लेट्स से वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन था, हमने नाम ले लिया, जॉन डो उसका नाम था। कब वो क्रिएट किया गया ये यूज केस? तो 3/15/2008 को ये यूज केस जनरेट किया गया। इसका एक्टर कौन है? एक्टर इसका स्टूडेंट है। सो इस पर्टिकुलर यूज केस में हम स्टूडेंट एक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके ज्यादा एक्टर भी हो सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर यूज केस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट एक्टर। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं कि एनरोलिंग की हम बात कर रहे हैं। सो यूज केस सिनेरियो क्या है? एनरोलिंग। सो एनरोलिंग अ स्टूडेंट इनटू अ क्लास, ठीक है, वो अपने आप को किसी क्लास में एनरोल कर रहा है। ट्रिगर क्या होगा इसका? स्टूडेंट विशेस टू एनरोल बिफोर द एनरोलमेंट डेडलाइन। ऐसा नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर में वो स्टूडेंट जो है वो साल के किसी भी वक्त किसी भी क्लास में एनरोल कर सके, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास में एनरोल कर सके, बल्कि डेडलाइन से पहले जो भी एनरोलमेंट का प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करेगा। प्री कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जांपल प्री कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसका कोई प्री रेक्विजिट है, तो प्री कंडीशन ये हो सकती है कि उस स्टूडेंट ने उसका प्री रेक्विजिट जो कोर्स है वो पहले पढ़ा हो, ठीक है। या इस केस में हम बात कर रहे हैं कि उसका या दूसरा प्री कंडीशन ये हो सकती है कि उसका ओवरऑल CGPA जो है वो इतना हो, ठीक है। या यहां पे जो प्री कंडीशन लिखी है वो ये है कि स्टूडेंट हैज बीन एक्सेप्टेड टू द यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट पीरियड हैज स्टार्टेड। इस केस में कंडीशन ये है कि क्लास में वो तब एनरोल हो सकता है जबकि उसको एडमिशन ऑफर हो चुका है, उसने फीस जमा करा दी है, ठीक है, और अब उसको जो है वो एक यूनिवर्सिटी का या इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, अब वो अपने आप को किसी क्लास में एनरोल कर सकता है। सो ये इसकी प्री कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी समझ लें। पोस्ट कंडीशंस क्या है? स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हैज बीन वैलिडेटेड एंड स्टोर्ड इन द यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट सिस्टम, ठीक है।
इसके बाद क्या चीज चेक की जाएगी? एनरोल उसने कर लिया, लेकिन आपने ये भी देखना है बाद में कि ये जो लेजिटिमेट यूजर है वही अपने आप को एनरोल करे। ऐसा ना हो कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया था, उसने फी डिपॉजिट नहीं कराई, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वो अगर अपने आप को एनरोल करना चाहता है तो उसको भी अलाउ कर दिया जाए। सो इस केस में पोस्ट कंडीशन में आप एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि एनरोलमेंट के बाद आपने वैलिडेट करना है कि क्या ये स्टूडेंट वाकई इस काबिल था, क्या इसकी सारी चीजें पूरी थी, क्या इसने फीस जमा की हुई थी, क्या इसके ड्यूज क्लियर थे, क्या इसका CGPA वगैरह अकॉर्डिंगली अपडेटेड मेंटेन था, उसके बाद इसको एनरोल किया गया है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो बीच में नहीं है जिसने रॉन्गली अपने आप को एनरोल कर लिया हो। ठीक है, सो आपने ये कंडीशंस लिख ली। अब बेसिक फ्लो क्या है, होगा क्या? ठीक है, सो जब एनरोलमेंट होगी तो ये फ्लो है, ये स्टेप्स हैं जो कि वो परफॉर्म करेगा। सो स्टूडेंट एंटर्स हिज और हर नेम, ठीक है, अपने उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट जो है वो अपना एक नाम देगा, ठीक है, अपना एड्रेस देगा, फोन नंबर देगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देगा, और उसके बाद सबमिट का बटन दबा देगा। ठीक है, उसके बाद उसको अवेलेबल कोर्सेज की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। लेट्स से क्लिक करेगा तो एक लिस्ट ड्रॉप हो जाएगी जिसमें जो कोर्सेज वो एनरोल कर सकता है वो आ जाएंगे। लेट्स से अगर पहले सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, सो ICP हो गया, या जो है वो इस्लामियात का कोई कोर्स हो गया, या और कोई बेसिक कंप्यूटर्स का कोई कोर्स हो गया। फिर अगला स्टेप क्या होगा? स्टूडेंट सेलेक्ट्स अ कोर्स फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड प्रेसेस द एक्सेप्ट बटन। सो मजीद डिटेल ये है कि वो ड्रॉप डाउन में से कोई एक कोर्स उसने सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से उसने सेलेक्ट किया सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का कोर्स, और वो करने के बाद उसने एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का कोर्स एनरोल करना चाहता है। अगले स्टेप में क्या होगा? द सिस्टम स्टोर्स द कोर्स इंफॉर्मेशन एंड आस्क्स द स्टूडेंट इफ ही और शी वांट्स टू सेलेक्ट अनदर कोर्स। ठीक है, जाहिर है एक सेमेस्टर में आप 4, 5 या 6 कोर्सेज रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो उस एक कोर्स की एनरोलमेंट हो गई, अब उससे दूसरा पूछा जाएगा कि क्या वो कोई दूसरा कोर्स रजिस्टर करना चाह रहा है। ठीक है, अगर तो रजिस्टर करना चाह रहे तो वो सारे स्टेप्स जो है वो दोबारा रिपीट करेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोर्स सेलेक्ट करेगा, फिर सेव का बटन दबाएगा, ठीक है, वो कोर्स उसके लिए विजिबल हो जाएगा, फिर तीसरा कोई कोर्स। ठीक है, तो और जाहिर है इस पर फिर कोई मैक्सिमम लिमिट भी लगेगी। उस वक्त तक वो कोर्सेज रजिस्टर कर सकता है जब तक वो मैक्सिमम लिमिट जो 6 कोर्सेज की है उस तक ना पहुंच जाए, या उस वक्त तक वो कोर्सेज रजिस्टर कर सकता है जब तक कि उसको जितने कोर्सेज अलाउड थे वो उसने रजिस्टर कर लिए, या एक्सप्लिसिटली वो नो कर देता है। क्योंकि लेट्स से सेकंड सेमेस्टर में हम कहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, 6 वो मैक्सिमम रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से हम कहते हैं कि वो कह रहा वो स्टूडेंट विशेस टू रजिस्टर ओनली 4 कोर्सेज, तो 4 के बाद जब ये मैसेज आएगा कि वुड यू लाइक टू एनरोल अनदर कोर्स, तो वो वहां पे नो प्रेस कर ले। सो प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट हो जब तक कि उसके सारे कोर्सेज रजिस्टर ना हो जाए, या जब तक वो नो प्रेस ना कर ले। ठीक है, सो दिस ऑल सिलेक्टेड कोर्सेज एंड स्केड्यूल आर प्रिंटेड आउट द स्टूडेंट लॉग्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो ये काम करने के बाद स्टूडेंट जो है वो अपने लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कोर्सेज को प्रिंट भी कर सकता है और उसके बाद सिस्टम से लॉग ऑफ कर लेगा। अल्टरनेटिव फ्लोज क्या हैं? ठीक है, अल्टरनेटिव फ्लोज को 2 हैं यहाँ पे। अल्टरनेटिव फ्लो 1 जिसको A1 से रिप्रेजेंट किया और अल्टरनेटिव फ्लो 2 जिसको A2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो फ्लो 1 के द सबमिट बटन इज प्रेस्ड, जो कि स्टेप 5 यहां पे था ये, एंड इफ एनी इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द एरर फील्ड एंड स्टेप 5 इज रिपीटेड। मतलब जब वो उसने अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर, स्टूडेंट नंबर जब दिया और सबमिट का बटन दबाता है, ठीक है, ये बात नहीं होगी कि हर दफा सबमिट का बटन दबाने पर उसको जो है वो कोर्स कोर्स रजिस्टर करने दे दिया जाएगा, बल्कि चेक किया जाएगा कि क्या इसने इंफॉर्मेशन ठीक रजिस्टर की है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका रोल नंबर ठीक एंटर्ड है। हो सकता है वो एक ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करता है जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है वो फोन नंबर में जो है वो अपना नेम प्रोवाइड कर रहा हो। सो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो अल्टरनेटिव फ्लो में उसको एक एरर मैसेज दिया जाएगा, और एरर मैसेज उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर देता। या जो स्टेप 7 था हमारे पास,
वो ये है कि स्टूडेंट सेलेक्ट्स अ कोर्स फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड प्रेसेस द एक्सेप्ट बटन। ठीक है, सो एक्सेप्ट के बजाय जो है अगर वो रिजेक्ट बटन दबाता है तो फिर क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब ये कि वो कोर्सेज रजिस्टर नहीं करना चाहता। सो ये हमने अल्टरनेटिव फ्लोज बता दिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ अगर गौर करें तो वो ये है कि यूज़ केस में बड़ा सिंपलिस्टिकली डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया कि एनरोलिंग का एक प्रोसेस है। अ स्टूडेंट कैन एनरोल अ कोर्स। ठीक है, अब देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक हमने उसकी डिटेल नहीं लिखी ये सारे प्रोसेसेस, ये सारी डिटेल्स या ये सारे स्टेप्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब याद रखें कि ये यूएमएल डायग्राम उस वक्त बन रही है जबकि सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग हो रही है, अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ डिजाइन किया जा रहा है, अभी सिर्फ केस सिनेरियोज देखे जा रहे हैं। ठीक है, सो जब आप इस यूज केस की टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब डेवलपमेंट का फेज आएगा या इसकी इंप्लीमेंटेशन का फेज आएगा या जब ये यूज केस आपका डेवलपर के पास जाएगा तो वो फिर अकॉर्डिंगली इसकी इंप्लीमेंटेशन करेगा। वो एक ऐसा फॉर्म बनाएगा जिसमें स्टूडेंट अपना नेम एंटर कर सके, एड्रेस एंटर कर सके, फोन नंबर एंटर कर सके, उसमें एक सबमिट का बटन होगा, एक एक्सेप्ट का बटन होगा, एक उसमें यस का बटन होगा, रिजेक्ट का बटन होगा, प्रोसेस रिपीट होगा, कुछ लूप्स होंगी, कुछ एरर्स चेकिंग होंगी, ये पीछे करेक्ट नेम को वेरीफाई करने के लिए पीछे डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेगा। सो ये सारी चीजें इम्प्लिसिटली इसमें शामिल हैं। ठीक है, लिखी हुई नहीं है लेकिन डेवलपर को जो है वो ये चीजें एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। सो नंबर 1 हमने यूज केस डायग्राम बना दी, नंबर 2 हमने जो है वो डिटेल यूज केस टेक्स्ट लिख लिया। तो ये यूज केस डायग्राम थी, इसमें हमने एक यूज केस का जो एनरोलिंग थी वो हमने उसका जो है वो हमने टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड टेक्स्ट हमने लिख लिया। तीसरा स्टेप यहाँ पे जाने से पहले आप दूसरा स्टेप दोबारा भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप इसको मजीद किसी टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन हमने ये लिखी, ठीक है, एनरोल की, कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन इस तरीके से भी लिखी जाती है। लेट्स से एक्टर्स का कौन है? स्टूडेंट। ठीक है, यूज केस की टाइप्स होती हैं, इंक्लूड यूज केस है या एक्सक्लूड यूज केस है, यहां पे हम इसको मेंशन नहीं करें। इसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई। ये यूज केस या ये सिनेरियो कितना यूज होगा? एज नीडेड। बिजनेस रूल्स या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नॉट एप्लीकेबल हैं। असम्पशंस जो है वो ये है कि सेलेक्टेड कोर्स मस्ट नॉट बी फुल। ऐसा ना हो कि लाइक उस कोर्स में 30 स्टूडेंट्स के रजिस्टर होने की गुंजाइश है और उसमें जो है वो 50 रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज को भी देखा जाएगा। इसी तरह यूज के सिनेरियोज क्या है? सिनेरियो 1 में बेसिक फ्लो है, सारी चीजें इसी तरह जाएंगी। सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि बेसिक फ्लो के बाद अल्टरनेट फ्लो 1 आएगा या अल्टरनेटिव फ्लो 2 आएगा या अल्टरनेटिव फ्लो 2 के बाद अल्टरनेट फ्लो 3 भी आ सकता है। सो उस यूज केस से रिलेटेड जितनी पॉसिबल टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन हो सकती है वो आपने टेबल्स की सूरत में आइडेंटिफाई कर ली, स्पेसिफाई कर दी, लिख ली। ये टेबल्स, ये टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका डेवलपर यूज करेगा ताकि इसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को कोड कर सके और अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को बना सके, इंप्लीमेंट कर सके। इसके बाद है स्टेप नंबर 3, दैट इज आइडेंटिफाई यूज केस सिनेरियोज। ठीक है, यूज केस सिनेरियो क्या चीज है? अ यूज केस सिनेरियो इज एन इंस्टेंस ऑफ अ यूज केस और अ कंप्लीट पाथ थ्रू द यूज केस। ठीक है, end users of the system can go down many paths as they execute the functionality specified in the use case. The basic or normal path is illustrated by the dotted lines. अब यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, सो हर वो पॉसिबल चीज जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है, शुरू कंप्लीट पाथ जो उसका हो सकता है वो उसका यूज केस सिनेरियो है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ यूज केस, कंप्लीट पाथ, मतलब स्टूडेंट ने अगर एनरोल किया है सो एनरोलिंग का जो है वो पूरा एक सिनेरियो है। जिसने हमने पहले भी देखा कि एनरोल करने के लिए जो है वो पहले अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, फिर अगर डिटेल्स ठीक होंगी तो उसके बाद जो है वो एक कोर्स सेलेक्ट करेगा, सबमिट का बटन प्रेस करेगा, फिर दूसरा कोर्स, ठीक है, और उस वक्त तक रजिस्टर करेगा जब तक कि वो नो प्रेस नहीं करता या जब तक कि उसको मैक्सिमम कोर्सेज जितने अलाउड हैं वो सारे के सारे रजिस्टर नहीं कर लेता। सो ये सारे क्या हैं? ये स्टेप नंबर 3 में आपने वो ऑल पॉसिबल पाथ्स आइडेंटिफाई कर लिए जो कि वो एक्टर फॉलो कर सकता है। सो कंप्लीट पाथ, कंप्लीट जो सिनेरियो है वो आपने लिख लिया। अगेन देखें, यहां पे हमने सिंपलिस्टिक लिखा कि एनरोल,
कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में एनरोल करेगा, लेकिन इस एनरोल के पीछे ढेर सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। सो वो डिटेल्स आइडेंटिफाई करना एक यूज केस सिनेरियो है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी, एनरोल की एक्टिविटी या उस इंटरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस स्टूडेंट को ये ढेर सारे काम या उसके बैक एंड पे ये सारी चीजें होंगी, उसके बाद वो ये एनरोलमेंट का काम, एनरोलमेंट अपनी कंप्लीट कर सकेगा। सो स्टेप 3 में हमने यूज केस सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना है। वो सारे स्टेप्स जो फॉलो करेगा उनको आइडेंटिफाई करना है, जिसकी डिटेल हमने यहाँ पर लिखी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने एनरोल करना है, सो अब ये कंप्लीट पाथ क्या है, ठीक है। एनरोलमेंट का सिनेरियो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, ये सारा पाथ स्पेसिफाई करना, ये सारा लिखना, ये बड़ा ज़रूरी है। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट एनरोल करता है, ठीक है। स्टूडेंट एनरोलमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चेक होगी। अगर स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन एंटर की और उस इंफॉर्मेशन के एंटर करने में कोई एरर आ गया है, ठीक है, तो दोबारा वो उसी स्क्रीन पर आएगा और उसको कहा जाएगा कि ठीक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करो या प्रोवाइड करो। और अगर उसने इंफॉर्मेशन एंटर की है और उसमें कोई एरर नहीं आया, ठीक इंफॉर्मेशन ऐड की है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम उसको या वो सॉफ्टवेयर उसको जो अवेलेबल कोर्सेज हैं जिनको वो एनरोल कर सकता है वो लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट उस लिस्ट में से एक कोर्स सेलेक्ट करेगा, एक्सेप्ट का बटन दबाएगा, ठीक है, तो वो सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेगा। अगर एक्सेप्ट का बटन नहीं दबाता, ठीक है, तो फिर क्या करता है कि वो बाकी अगर कोई कोर्स जो पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसने एक सेलेक्ट किया था, एक्सेप्ट का बटन नहीं दबाया, इसका मतलब यह है कि कोई दूसरा कोर्स वो सेलेक्ट करना चाहता है, सो वो दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर लेगा। सो ये यहाँ पे एक लूप की सूरत में चल रहा है और हमने ये लिखा है कि ये अल्टरनेट फ्लो 2 है, ठीक है। ये अल्टरनेट फ्लो 1 था जिसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि अगर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो क्या होगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्लो 2 है, यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्लो 3 है। तो एक कोर्स रजिस्टर हो गया, क्या वो मजीद कोर्सेज एनरोल करना चाह रहा है? अगर यस, तो फिर उसको जो अवेलेबल लिस्ट ऑफ कोर्सेज है वो दिखाई जाए और वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अगर वो मोर कोर्सेज रजिस्टर नहीं करना चाह रहा, ठीक है, नो प्रेस करता है, ठीक है, या उसने सारे कोर्सेज रजिस्टर कर लिए हैं, सो सिस्टम प्रिंट्स आउट कोर्सेज, स्टूडेंट लॉग्स आउट एंड ये यूज केस खत्म हो जाता है। तो ये कंप्लीट पाथ है जो कि उस स्टूडेंट ने इनरोल के यूज केस सिनेरियो के लिए फॉलो किया है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप में हमने कंप्लीट पाथ उस यूज केस सिनेरियो का लिख लिया। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप में हम जनरेट टेस्ट केस कर रहे हैं। एक्चुअली हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो यूज केस ठीक है या नहीं और जो फंक्शनैलिटी उस यूज केस से रिक्वायर्ड है वो अकॉम्प्लिश हो रही है या नहीं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में टेस्ट केस हम जनरेट कर रहे हैं। टेस्ट केस क्या है? हम इस यूज केस को टेस्ट कंडीशन में डाल रहे हैं, टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये यूज केस ठीक काम करेगा या नहीं करेगा। सो सबसे पहले क्या देखना है हमें? अ टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ टेस्ट इनपुट्स, execution conditions and expected results developed for a particular object. जेनेरिक डेफिनेशन टेस्ट केस की ये है कि आप किसी भी चीज को टेस्ट करना चाहते हो तो आप एक टेस्ट केस बनाते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं, उसको आपने इनपुट दी, उसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो यही काम हम अपने यूज केस के लिए भी करेंगे। सो जब हमने पहले लिखा कि कंप्लीट यूज केस सिनेरियो आइडेंटिफाई करें और याद रखें कि ये स्टूडेंट एनरोल करना ये एक सिनेरियो है, इसी तरह बाकी सिनेरियोज भी हैं और वो बाकी सिनेरियोज थे। फॉर एग्जांपल चेंज का कोई कोर यूज केस सिनेरियो है, उसका अलग से कंप्लीट पाथ होगा, ड्रॉप है तो उसका अलग से कंप्लीट पाथ होगा। इस पर्टिकुलर केस में हम सिर्फ एनरोल का यूज केस सिनेरियो जो है वो कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं और उसके लिए हम टेस्ट केस जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना है? दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय एनालाइजिंग द सिनेरियोज एंड रिव्यूइंग द यूज केस टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस यूज केस के लिए टेस्ट केस बनाना है, ठीक है। जो एनरोलमेंट का यूज केस सिनेरियो था उसके लिए टेस्ट केस बनाना है। टेस्ट केस आप कैसे बनाएंगे, कैसी इनपुट देंगे, कैसे आउटपुट देंगे, ये आपको इस डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड होगा। ये आपको इस किस्म की डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी थी यहां से ये डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। तो इन डिटेल्स को सामने रखते हुए, इन डिटेल्स को यूज करते हुए आप क्या करेंगे
कि आप एक टेस्ट केस आइडेंटिफाई करेंगे। हर सिनेरियो के लिए, हर कंप्लीट पाथ के लिए एक टेस्ट केस जरूर होना चाहिए, और फॉर ईच इनवैलिड टेस्ट केस देयर शुड बी ओनली वन इनवैलिड आउटपुट। अगर मतलब या तो ठीक वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या वो रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, आपने दोनों को चेक करना है। आइए स्टेप 4 में हम देखते हैं कि हमारे एनरोल के यूज केस के लिए टेस्ट केस कैसे जनरेट किया जाता है। इसकी डिटेल यहां पे लिखी है। टू डॉक्यूमेंट द टेस्ट केसेस अ मैट्रिक्स फॉर्मेट कैन बी यूज्ड। ठीक है, आप एक टेबल की सूरत में जो है वो एक टेस्ट केस जनरेट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स की में या इस टेबल में फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो कंटेन्स द टेस्ट केस आईडी होगी, सेकंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन होगी, थर्ड कॉलम में टेस्ट केस होगा, और चौथे में ब्रीफ सी उसकी डिटेल्स होंगी या ब्रीफिंग होगी उसकी। अदर कॉलम्स एक्सेप्ट द लास्ट वन कंटेन डाटा एलिमेंट्स दैट विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द टेस्ट। The last column contains a description of the test case's expected output. V depicts valid test case input and I depicts an invalid test input. ठीक है, सो आपने एक टेस्ट केस सिनेरियो आइडेंटिफाई किया। ठीक है, टेस्ट केस सिनेरियो में आप देखेंगे कि इसको वैलिड इनपुट दी जाए तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, इनवैलिड दी जाए तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। ये देखने के लिए टेस्ट केस आप जनरेट करते हैं और टेस्ट केस को एक मैट्रिक्स की सूरत में, एक टेबल की सूरत में जनरेट किया जाता है। सो आइए अब अगली स्लाइड में एग्जैक्टली देखें कि हमारा जो एनरोल का यूज केस था उसका टेस्ट केस कैसे जनरेट होता है। सो ये वो एनरोलमेंट के टेस्ट केस की मैट्रिक्स है। सबसे पहले टेस्ट केस आईडी क्या है, एनरोल 1। सबसे पहले सिनेरियो 1 है। सो कंडीशंस हैं, स्टूडेंट नेम या वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, एड्रेस या वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, इसमें ये इंफॉर्मेशन वैलिड है या इनवैलिड है, कोर्स रिजेक्ट की ऑप्शन, एग्जिट एनरोलमेंट की ऑप्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसके क्या है। सो सबसे पहले आईडी है एनरोल 1। हम डिफरेंट सिनेरियोस कंसीडर कर रहे हैं। सिनेरियो 1 में वो अगर सक्सेसफुल एनरोलमेंट करता है, ठीक है, सक्सेसफुल एनरोलमेंट की उसकी तब होगी जब स्टूडेंट नेम भी उसने वैलिड प्रोवाइड किया है, एड्रेस भी उसने वैलिड प्रोवाइड किया है, फोन नंबर भी उसका वैलिड था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी वैलिड था, कोर्स उसने कोई रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, और उसने जो है वो ये सारी चीजें ठीक परफॉर्म करके, ज़ाहिर कोर्स रिजेक्ट नहीं किया तो उसका मतलब है कोर्स एक्सेप्ट किया है। कोर्स एक्सेप्ट किया है तो वो फिर अपनी एनरोलमेंट का प्रोसेस एग्जिट कर सकता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होंगे, जो कोर्सेज उसने सेलेक्ट किए हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं और सिस्टम जो है वो एग्जिट कर जाता है। अब इसी एनरोलमेंट का सिनेरियो 2 देखते हैं। ठीक है, जिसमें यहां पे सारी चीजें ठीक होंगी तो कैसे चलेगा, कोई एक चीज रॉन्ग हो गई तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो सिनेरियो 2 में क्या है, अनआइडेंटिफाइड स्टूडेंट, यानी कि उसका नेम ही सिस्टम में नहीं है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। सो अगर स्टूडेंट नेम कोई रॉन्ग प्रोवाइड कर रहा है, रॉन्ग से मुराद ये है कि एक ऐसे स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश करे जो कि सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं है, बैक एंड पे उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है। सो बैक एंड पे अगर उसकी डिटेल्स नहीं है तो उसको तो कभी भी अपने आप को एनरोल नहीं होना चाहिए या उसको ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को एनरोल कर सके। इस केस में स्टूडेंट नेम अगर इनवैलिड है, सो जाहिर है फिर इनवैलिड नेम देने से ना उसका एड्रेस करेक्टली प्रोवाइड होगा, ना फोन नंबर करेक्टली, ये उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या वो अपनी एनरोलमेंट को एग्जिट कर सकता है? एनरोलमेंट को वो एग्जिट नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक उसने कुछ एनरोल ही नहीं किया। उसको क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसको एरर मैसेज आना चाहिए, बैक टू लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेज। वो जो मेन ऑप्शन थी, मेन मेन्यू था लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेज, वो उसी मेन्यू में रहेगा, उसी ऑप्शन पे वो रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक कि वो अपना वैलिड नेम प्रोवाइड नहीं करता। सो ये सिनेरियो 2 था। सिनेरियो 3 में क्या है, अगर वो कोर्स रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, मतलब उसने नाम उसने ठीक प्रोवाइड किया लेकिन कोर्स एक्सेप्ट के बटन प्रेस करने के बजाय कोर्स का रिजेक्ट का बटन प्रेस कर देता है, फिर क्या होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट नेम उसने वैलिड नेम प्रोवाइड किया, बाकी डिटेल्स भी वैलिड प्रोवाइड की। कोर्स रिजेक्ट मतलब जब कोर्स सिलेक्ट किया जाता है तो यूज केस की डिटेल्स में हमने बताया कि या वो एक्सेप्ट का बटन दबाएगा या वो रिजेक्ट का बटन दबाएगा। क्या उसने रिजेक्ट का बटन दबाया? यस, अगर रिजेक्ट का बटन दबाया तो क्या उसकी एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई? नहीं, एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं होगी, वो एनरोलमेंट के प्रोसेस से एग्जिट नहीं करेगा। और
क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए? एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है सेलेक्टेड कोर्स इज सिलेक्टेड, रिजेक्टेड, बैक टू लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेज। जो कोर्स उसने सेलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, ठीक है, सिर्फ वो व्यू हो रहा था। अब या उसने एक्सेप्ट का बटन प्रेस करना था या रिजेक्ट का। उसने रिजेक्ट का बटन जब प्रेस कर दिया तो वो अगेन उसी मेन्यू में रहेगा, ठीक है। सो इस जनरेट टेस्ट केस सिनेरियो में हमने 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखी एनरोलमेंट के प्रोसेस में, ठीक है, कि स्टूडेंट वो एक्टर सारी डिटेल्स ठीक प्रोवाइड करे तब क्या होगा, अपना अगर नाम गलत प्रोवाइड करे तब क्या होगा, और नाम अगर ठीक प्रोवाइड करे और किसी अल्टरनेटिव फ्लो की तरफ जाता है तो तब क्या होगा। सो ये हमने एक टेस्ट केस जनरेट कर दिया सिर्फ एक सिनेरियो एनरोलमेंट के लिए। और लास्ट है हमारे पास जनरेटिंग टेस्ट डेटा, ठीक है। टेस्ट डेटा हम कैसे जनरेट करें? वंस ऑल ऑफ द टेस्ट केसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये सिर्फ एक टेस्ट केस की हमने एग्जांपल देखी। जितने भी सॉफ्टवेयर में टेस्ट केसेस हैं, सॉफ्टवेयर में 100, 150, 200, इससे ज्यादा भी टेस्ट केस हो सकते हैं। इस छोटी सी एग्जांपल में हमारे पास 3 टेस्ट केस सिनेरियोज थे, इनरोल का, ड्रॉप का, ठीक है, और इसी तरह जो है वो कोर्स का, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये 3 टेस्ट केस थे, चेंज का, इनरोल का, चेंज का और ड्रॉप का। सो ये 3 यूज केस सिनेरियोज थे। ये एक एक्टर के लिए हैं और इन 3 सिनेरियोज में से सिर्फ एक की एग्जांपल लेकर हमने ये 5 स्टेप्स अप्लाई किए हैं। किसी सॉफ्टवेयर में कई जो है वो यूज केसेस हो सकते हैं, कई एक्टर्स हो सकते हैं, और ये यूज केस सिनेरियोज जो हैं वो मतलब कई ज्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20 से लेकर 100, 150 यूज केसेस तक हो सकते हैं। तो अगर आप इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हर यूज के लिए आपने हर यूज केस के लिए हर यूज केस आपने आइडेंटिफाई करना है, हर यूज केस के लिए आपने टेस्ट केस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर देखना है कि वैलिडेटेड है, एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए आप उसको वैलिडेट करेंगे, या आप ये देखते हैं कि कोई रिडंडेंट तो नहीं है, कोई किसी एक यूज केस का टेस्ट केस आप रिपीट तो नहीं कर रहे, या ऐसी बात तो नहीं है कि किसी यूज केस का टेस्ट केस बनाना था वो आपने बनाया ही नहीं। सो आप इस चीज को इंश्योर करते हैं। जब ये सारी चीजें हो जाएं, once they are approved, the final step is to substitute actual data values for the i's and v's, ठीक है। invalids और valids, अब इसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये आप अब एक्चुअली डाल के देखेंगे। पहले तो हमने ये कहा कि वैलिड हो तो उसको ऐसा काम करना चाहिए, इनवैलिड हो तो उसको ऐसा काम करना चाहिए। अब हम टेस्ट डाटा के लिए एक्चुअली वैलिड नेम्स और इनवैलिड नेम्स प्रोवाइड करके देखेंगे, या वैलिड इंफॉर्मेशन और इनवैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देखेंगे। इस केस के लिए हम क्या करेंगे? इस केस के लिए भी, टेस्ट डाटा के लिए भी हम एक मैट्रिक्स, एक टेबल जो है वो जनरेट करते हैं और हम वो वैल्यूज डालते हैं जिससे हमें पता चले। सो ये जो प्रीवियस मैट्रिक्स थी, अब इसमें हम एक्चुअली वैल्यूज डालकर देखेंगे कौन सी वैल्यूज डाली जाए, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन हम जो है मेनली 2 वैल्यूएबल टेक्निक्स का जिक्र करते हैं, क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। इन दोनों का जिक्र भी आज के लेक्चर में होगा। सो आइए इस टेस्ट केस के लिए, ये जो पुरानी मैट्रिक्स थी, जो टेबल था, टेस्ट केस का मैट्रिक्स था, इसके लिए हम टेस्ट डाटा जनरेट करते हैं और वीज, वैलिड्स और इनवैलिड्स के लिए हम एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एक्चुअल वैल्यू डालकर देखते हैं। अब सिनेरियो था एनरोलमेंट, टेस्ट केस आईडी थी एनरोल 1, सिनेरियो 1 था, ठीक है। स्टूडेंट नेम जॉन डो था। अगर स्टूडेंट नेम भी ठीक है, एड्रेस भी ठीक है, फोन नंबर का भी करेक्ट फॉर्मेट है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोर्स जो है वो उसने ओशनग्राफी, ओशनोग्राफी या लेट से उसने आईसीपी या कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लिया, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कोर्सेज एंड स्केड्यूल डिस्प्ले हो जाता है और सिस्टम जो है वो एग्जिट कर जाते हैं। अगर स्टूडेंट ने नेम इनवैलिड प्रोवाइड किया है, ठीक है, अब वो बाकी चीजें चेक ही नहीं होंगी, एड्रेस वगैरह उसके क्या चेक होने, अगर नेम ही इनवैलिड है, ठीक है, तो एरर मैसेज सेम रहेगा, बैक टू लॉगिन स्क्रीन। मतलब पिछले में आपने जो है वो सिर्फ वीज और आई से करके देखा, वैलिड इनपुट या इनवैलिड। अब आप एक्चुअली वैल्यूज डालकर देख रहे हैं। अब हम फिर देख रहे हैं कि अगर अनआइडेंटिफाइड स्टूडेंट है, ठीक है, और वो नेम इनवैलिड डाल के देखता है, फिर भी उसी लॉगिन स्क्रीन पर रहेगा, या वो फोन नंबर इनवैलिड प्रोवाइड करता तब भी वो उसी लॉगिन स्क्रीन पर रहेगा, या वो जो है वो
फ़ोन नंबर है या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड प्रोवाइड करता है, तभी उसी लॉगिन स्क्रीन पर रहेगा। सो जब तक कि वो ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नंबर, ये जब तक अपनी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड नहीं करेगा, वो लॉगिन स्क्रीन पर ही रहेगा, या जब तक कि जो कोर्स भी उसने करेक्टली सिलेक्ट करना है वो लॉगिन स्क्रीन पर रहेगा। सो हमने देखा कि पहले केस में सारी चीज़ें ठीक प्रोवाइड की हैं, सो उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया है। और अगली सिनेरियोज में जब उसने एक भी चीज़ रॉन्ग प्रोवाइड की, यहाँ पे ये रॉन्ग नेम रॉन्ग प्रोवाइड किया तो एरर मैसेज आ गया, अगले में उसने एड्रेस रॉन्ग प्रोवाइड किया तो एरर मैसेज आ गया, सिनेरियो 2 में उसने जो है वो फ़ोन नंबर रॉन्ग प्रोवाइड किया सो एरर मैसेज आ गया, सिनेरियो 2 के अनआइडेंटिफाइड स्टूडेंट में मतलब उसने अगर स्टूडेंट नंबर रॉन्ग प्रोवाइड किया तो एरर मैसेज आ गया, उसने कोर्स अगर रॉन्ग प्रोवाइड किया तो एरर मैसेज आ गया। और थर्ड सिनेरियो में हमने देखा कि अगर वो रिजेक्ट का बटन प्रेस कर देता है, लेट्स से सेलेक्ट के बजाय उसने ओशियानोग्राफी का कोर्स सेलेक्ट किया था और सेव कर लिया था, तो फिर तो रिजल्ट आ गया था कि कोर्स रजिस्टर हो जाता है और उसको डिस्प्ले हो जाता है और सिस्टम एग्जिट करता है। लेकिन अगर उसने कोर्स सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर दिया है तो फिर वो लॉगिन स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने दोबारा रिपीट करता चलूं कि 5 स्टेप्स अप्लाई किए। सबसे पहले हमने यूज केस सिनेरियो देखा, यूज केस देखा, उसमें हमने एक्टर आइडेंटिफाई किया, वो एक्टर कई काम करे, हमने एक सिनेरियो दिया एनरोल का, उसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके बाद हमने टेस्ट केस का कंप्लीट पाथ आइडेंटिफाई किया, चौथे केस में हमने टेस्ट केस जनरेट किया और एक मैट्रिक्स की सूरत में हमने बताया कि कहां पे वैलिड इनपुट हो तो क्या इंफॉर्मेशन होगी, अगर इनवैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी तो फिर क्या होगा। स्टेप 5 में हमने एक्चुअल टेस्ट डेटा प्रोवाइड किया और हम देखते हैं कि जब तक इंफॉर्मेशन जहां पे वैलिड रिक्वायर्ड थी तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या थे और जब इनवैलिड थी तो उस वक्त रिजल्ट क्या थे। सो इस सारी चीज को हमने किसी एक यूज केस को हमने इन 5 स्टेप से हमने टेस्ट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे एक आसान सी चीज जो लग रही थी सिर्फ एनरोलमेंट का प्रोसेस, उसको हमने टेस्ट कर लिया और सारी चीजें हमने प्रोवाइड करके देख लें कि इसमें रॉन्ग इनपुट होगी तो क्या होगा, इनवैलिड आर्गुमेंट्स अगर प्रोवाइड किए जाएंगे तो क्या आउटपुट होगी, एरर मैसेजेस किस किस्म के होंगे। अब डेवलपर के पास जब ये चीज आती है तो डेवलपर अकॉर्डिंगली इसको इंप्लीमेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये इतना डिटेल में चेक हो चुका है तो फिर एरर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। सो ये हमारी डिजाइन से रिलेटेड जो एक यूज केस डायग्राम थी उसकी टेस्टिंग का हमने ये एक 5 स्टेप प्रोसेस को डिस्कस किया। अच्छा जी, हमने बात की कि टेस्ट केस डेटा जब आप जनरेट करते हैं तो हमारे पास 2 हैं, एक है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और एक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग if not at times impossible to test every single input value combination for a system। जाहिर है बाज़ औक़ात आप हर इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइड करके नहीं देख सकते, ठीक है, हर इनवैलिड वैल्यू को प्रोवाइड करके आप सिस्टम को टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हैं, सिस्टम को आप या टेस्ट केसेस को आप सबसेट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं और हर पार्टीशन के लिए आप कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। सो वी कैन ब्रेक आवर टेस्ट केस इनटू सब टेस्ट्स या सबसेट्स। वी देन चूज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज फॉर ईच सबसेट एंड इंश्योर दैट वी टेस्ट दीज। मतलब आपने पार्टीशन कर ली, ठीक है, एंड ईच सबसेट ऑफ टेस्ट इज थॉट ऑफ एज अ पार्टीशन बिटवीन नेबरिंग सबसेट्स और डोमेन। जैसे हमने एक दफा पहले भी पार्टीशनिंग में डिस्कस की थी कि आप पार्टीशंस करके फिर सैंपल टेस्ट करते हैं। सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज देखना जो है वो पॉसिबल या कन्वीनियंट नहीं है, तो आपने सब सेट्स बना लेते हैं कि हाँ जी यहाँ पे मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर अल्फाबेट्स में है तो ये होगी, अगर न्यूमेरिक में है तो ये होगी, अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो ये होगी। इसना इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन का एक और सबसेट आपने बना दिया। सो आप मुख्तलिफ सबसेट बना के फिर उसमें से एक सैंपल वैल्यू जो है वो दे के टेस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के फायदे क्या है? इट मेक्स यूज ऑफ द प्रिंसिपल दैट सॉफ्टवेयर एक्ट्स इन अ जनरल वे, जनरलाइजेस इन द वे इट डील्स विद सबसेट्स ऑफ डेटा। मतलब आपने सैंपल ले, जब आप सैंपल को टेस्ट करें तो वो ओवरऑल सारी चीजों को टेस्ट कर रहा है। इसी तरह सेलेक्ट ग्रुप्स ऑफ इनपुट्स दैट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी हैंडल्ड इन द सेम वे। अगर एक पार्टीशन आपने टेस्ट की
और उस पर टेस्ट अप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि उस पार्टीशन में बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी रिप्रेजेंट हो रही हैं, वो सारी टेस्ट हो गई, ठीक है। और इसी तरह ये टेस्टर्स के लिए भी स्लाइटली इजी हो जाता है, एग्जॉस्टिव भी नहीं है। और ये दिस अप्रोच, लास्ट पॉइंट, द अप्रोच फॉर्मलाइजेज द टेक्निक अलाउइंग एन इंट्यूटिव अप्रोच टू बिकम रिपीटेबल। मतलब जहाँ पे नेसेसरी हो, आप जो है वो उस पार्टीशन में से सैंपल डाटा लेके आपने टेस्ट किया, अगली पार्टीशन में गए, वहां से सैंपल डाटा लिया, सो आपने ऑलमोस्ट उस चीज से एग्जॉस्टिव होने से भी आप बच गए कि हर चीज को जो है वो बार बार चेक करें, और आपने ऑलमोस्ट कवरेज भी सारी की सारी कर ली। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एक रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस डिस्काउंट if they are at least 18 years and no older than 56 years of old। ठीक है, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो कि इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और एक कस्टमर की इंश्योरेंस तब की जाएगी जबकि उसकी एज 18 से 56 साल के दरमियान में है। अब अगर हमने इसकी ये यूज केस सिनेरियो बनाया और उसकी हमने जो है वो टेस्ट केस जनरेट किया, टेस्ट केस सिनेरियो जनरेट किया और फिर टेस्ट केस डाटा जो है वो जनरेट किया। अब उस टेस्ट केस डाटा को हमने इनपुट देनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है 18 से 56, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पे देना पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स से आप ये टेस्ट नहीं कर सकते कि अगर वैल्यू एज 1 हो तो फिर क्या मैसेज होगा, एज अगर 2 हो तो फिर क्या मैसेज होगा, एज 3 ईयर्स हो तो क्या मैसेज होगा, एज 15 ईयर्स हो तो क्या मैसेज होगा, एज अगर 18 ईयर्स हो तो क्या मैसेज होगा, एज 54 ईयर्स हो तो क्या मैसेज होगा, 56 हो तो क्या एरर मैसेज होगा। सो ये एग्जॉस्टिवली आप चेक नहीं कर सकते, आप इसकी पार्टीशन बना के रैंडमली आप चेक करते हैं, जैसा कि हम इस जगह पे देखते हैं। सो हमने पार्टीशन कर ली, हमने बना दिया कि भाई इनवैलिड पार्टीशन 18 से पहले होगी, वैलिड पार्टीशन 18 और 56 के दरमियान होगी, और इनवैलिड पार्टीशन 56 से ग्रेटर होगी। सो आपने यहां पे 3 पार्टीशंस कर ली। अब ये इनवैलिड पार्टीशन, आप जरूरी नहीं है कि 1 से 17 तक आप सारी वैल्यूज को चेक करें, ठीक है। आपने 1 से 17 के दरमियान कोई एक वैल्यू चेक कर ली तो ये पूरी की पूरी पार्टीशन चेक हो जाएगी। सो इनवैलिड पार्टीशन को आपने चेक कर लिया। इसी तरह वैलिड पार्टीशन को अगर चेक करना है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप 19, 20, 21, 22, 23 से लेकर और 54, 55, 56 तक सारी वैल्यूज डाल के देखें कि ये सॉफ्टवेयर ठीक काम करेगा या नहीं, या कोई एरर मैसेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या सक्सेसफुल इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्टेड का मैसेज देने। सो इस पार्टीशन में वैलिड रेंज क्या है, 19 टू 56। तो 19 से 56 के दरमियान जो डाटा है उसका एक सैंपल ले ले, लेट्स से 20 ले लिया, लेट्स से 25 ले लिया, लेट्स से 51 ले लिया। सो कोई एक सैंपल डाटा लेके आप इसको टेस्ट करो। और इसी तरह तीसरी पार्टीशन में 56 से ग्रेटर, अब 57 भी 56 से ग्रेटर है, ठीक है, और 80 भी 56 से ग्रेटर है। तो अगेन जरूरी नहीं है कि आप 56 के बाद 57, 58, 59 और सबको चेक करें। सो आपने पार्टीशन कर ली और उस पार्टीशन के बाद किसी एक वैल्यू को आप लेकर टेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ आवर पार्टीशनिंग वर्क। एंड सो आपने एग्जॉस्टिव होने से भी बच गए, और आपने कवर भी सारा कर लिया, और आपने इनवैलिड और वैलिड पार्टीशंस के थ्रू जो वैल्यूज डिजायर्ड थी वो भी आपने देख ली। सो अब अगर डेवलपर इसको डेवलप कर रहा है, अगेन जैसे मैंने बात की, सो इनवैलिड पार्टीशन कोई भी वैल्यू जो कि 18 या 18 से कम है वो इनवैलिड में आएगा। सो यहां पे एरर मैसेज उसको आना चाहिए। वैलिड पार्टीशन 18 से लेकर जो है वो 56 की रेंज में होगी, और जो भी 56 से ज्यादा है वो भी इनवैलिड में है। सो वैलिड रेंज क्या हुई, 18 से 56। सो इफ इस चीज को डेवलपर को भी जो है वो बड़ा केयरफुली होके देखना पड़ेगा, और डेवलपर जो है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली करेगा। मतलब अगर पॉलिसी ये है कि इफ दे आर एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड की जब आप बात करते हैं तो 18 उसमें शामिल है। अगर डेवलपर उसको 18 से ऊपर का कंसिडर कर रहा है, सिर्फ 18 कंसिडर नहीं कर रहा, तब भी मसले मसाइल बन सकते हैं। सो इस चीज के बारे में जो है वो बड़ा केयरफुल होके रहना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास बाउंड्री एनालिसिस, ठीक है। बाउंड्री एनालिसिस क्या है, उसी एग्जांपल को अगर देखें 18 और 56 ईयर्स की, तो आप बाउंड्री एनालिसिस करते हैं। तो आपकी जो बाउंड्री है वो 18 है और 56 है। बाउंड्री वैल्यूज इस पार्टीशन की क्या है, 17 और 19। बाउंड्री वैल्यूज इस पार्टीशन की क्या है, 56, 55 और 57। सो अब अगर आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर रहे हैं, बाउंड्री एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप 17 डाल के देखते हैं,
और 19 डाल के देखते हैं, या आप 55 और 57 डालकर देखते हैं। सो इस केस में टेस्ट वैल्यूज वुड बी 17, 18, 19, 55, 56 एंड 57। सो ये बाउंड्री वैल्यूज डालकर आपने देखा कि फिर क्या होता है। मतलब यहां पे अगर आप 1, 2, 10 डालते हैं तो वो बाउंड्री वैल्यूज नहीं है। सो जो पार्टीशन के करीब जो वैल्यूज हैं, करीब तरीन हैं, जो इमीडिएट नेबर वैल्यूज हैं, यानी कि 18 की नेबर वैल्यू 17 और 19 है, 56 की नेबर वैल्यू 55 और 57 है। सो इन वैल्यूज को डाल के आप जो है वो अपना एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसी तरह यहां पे भी देखें, फॉर ईच बाउंड्री वी टेस्ट +-1 इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ईदर साइड ऑफ द बाउंड्री। जैसे मैंने बात की कि बाउंड्री वैल्यू अगर 18 है तो -1 उसका 17 है और +1 19 है। सो आपने 17 भी चेक कर लिया और 19 भी चेक कर लिया। बाउंड्री वैल्यू अगर 56 थी, सो -1 55 है और +1 57 है। सो ये बाउंड्री वैल्यूज भी आपने चेक कर लें। इसी तरह आप जो है वो सॉफ्टवेयर को अपने बाउंड्री वैल्यूज पर टेस्ट करते हैं, मिड रेंज देखते हैं, 0 को डाल के देखते हैं, इन नेगेटिव वैल्यूज डाल के देखते हैं, ठीक है, आउट ऑफ रेंज नंबर्स को डाल के देखते हैं। अगर कोई अपनी एज जो है वो लाइक वैलिड रेंज में है, 19 है, लेकिन वो 19 के बजाय 19 ऐसे लिखता है, तो फिर क्या उसको आना चाहिए, या इलीगल करैक्टर्स को डालता है, सो फिर क्या होना चाहिए। सो ये सारी चीजें आप डाल के बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक रिक्वायरमेंट है, लेट्स से एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को फर्दर देखें एक एग्जांपल के थ्रू। द कस्टमर मस्ट बी एटलीस्ट 18, ठीक है। Customers are eligible for a life insurance discount of 40% if they are at least 18 and no older than 25 years of age. ठीक है. Customers are entitled to 30% discount if they are in this year's age, 25 years of age range, but under 40. And customers are entitled to a 10% discount if they are 40 or over, but no older than 56. अब over 56 customers are not entitled to a discount. अब यहाँ पे आपकी equivalence partitions क्या होंगी? यहाँ पे कौन सी बाउंड्री वैल्यूज जो है वो आप टेस्ट करेंगे और इसके अलावा क्या वैल्यूज आप टेस्ट करेंगे। अगर इसको आप गौर से देखें सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो है। सो इसको यहाँ पे जो है वो हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारी बन रही है 4 पार्टीशंस, ठीक है। एक हमारी जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि 18 और उस एटलीस्ट 18, ठीक है, और 18 से 25 की एक रेंज है, एक 25 से 40 की रेंज है, और एक 40 से 56 की रेंज है, ठीक है, और एक इसके बाद की एक इनवैलिड है और एक 18 से पहले की इनवैलिड है, ठीक है। सो टोटल हमारे पास 5 पार्टीशंस हैं। ये 18 से 25 की वैलिड, फिर 25 से 40 की वैलिड, फिर 40 से 56 की वैलिड, 56 से ऊपर जो है वो इनवैलिड है या 0 डिस्काउंट है, और 18 से नीचे जो है वो इनवैलिड है और 0 डिस्काउंट है। तो हमने 5 पार्टीशंस की, ठीक है, और इन 5 पार्टीशंस पर हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किया। इस पार्टीशन के लिए हमने 17, 18, 19 देखा। इस पार्टीशन के लिए हमने 24, 25, 26 दे के देखा। इसी तरह इन पार्टीशंस के लिए भी हमने वैल्यूज डालकर देखा, ठीक है। सो आप इस तरीके से पार्टीशन करके अपना पार्टीशंस करते हुए और अपनी बाउंड्री वैल्यूज डालते हुए अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर कंसिडर की जाए इनवैलिड पार्टीशंस की। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, वन ऑफ द फील्ड्स ऑन अ फॉर्म कंटेन्स अ टेक्स्ट बॉक्स which accepts numeric values in the range of 18 to 26, ठीक है, identify the invalid equivalence class, ठीक है। 17, 19, 25 और 21 में से कौन सा आंसर होगा। सो एक टेक्स्ट बॉक्स जो है न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि 18 से 26 की रेंज में आता है, ठीक है, वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। सो इनवैलिड इसमें से कौन सी वैल्यू है, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि क्लास 1 क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 18 है, इनवैलिड क्लास है। 18 to 25 ये वैलिड क्लास है, ठीक है, और इसी तरह 25 से अबव जो है वो इनवैलिड क्लास है। सो आपने इसमें ये देखना है कि वैलिड क्लास क्या है और इनवैलिड क्लास क्या है। तो वो आपसे पूछा है कि इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास बताओ, ठीक है, इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास। तो 19, 25, 21 ये तो हमारे पास चूंकि वैलिड रेंज में आ रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा वैलिड क्लास में है, ठीक है। सो आंसर इज 17, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम।
द मैक्सिमम दैट ही कैन स्कोर इज 50 मार्क्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द वैलिड इक्विवेलेंस वैल्यूज इफ द स्टूडेंट पासेस द एग्जाम। अब 25 और 50 के दरमियान जो है ये रेंज वैलिड है, ठीक है। सो आपसे पूछे जा रहे कि वैलिड बताओ इसमें से कौन सा है, तो 25 से 50 के दरमियान वैलिड क्या है, इसको देखने के लिए आप इनवैलिड और वैलिड क्लास ढूंढते हैं। सो 25 से 50 जो है वो वैलिड क्लास है। सो इस पर्टिकुलर केस में 25 से, क्या ये 25 से 50 के दरमियान है? नहीं। क्या ये 25 से 50 के दरमियान है? नहीं। क्या ये 25 से 50 के दरमियान है? ठीक है। और इसी तरह लास्टली आप देखते हैं आंसर नंबर सी हमारे पास, तो उस रेंज को अकॉर्डिंगली आप देखकर, मतलब 25 और 50 के दरमियान, ठीक है। सो 25 और 50 के दरमियान जो हमारी वैलिड क्लास बन रही है वो हमारे पास आंसर नंबर सी में आ रहा है। 25 से 50 की रेंज में 29, 30 एंड 31 ऑल द वैल्यूज शुड बी इन क्लास 2, क्योंकि बाकी में वो इनवैलिड आ रही है। सो अगर इसको आप देखें तो आप ज्यादा बेहतर तौर पर समझ जाएंगे। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यूज केस क्या होते हैं, यूज केसेस को कैसे टेस्ट किए जाते हैं, उसके 5 स्टेप्स हमने देखे। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या होती है और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, इसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद मोर डिटेल्स ऑन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, या उसके जो मजीद क्वालिटी फैक्टर्स हैं इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।